Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. This is your mathematics teacher Nadia Kasmi. Student, in lecture number 3 we discussed algebraic expressions and the basic terms involved algebraic expression. Student, today we are going to discuss the kinds of algebraic expression. Student, first kind of algebraic expression is polynomial expression or simply polynomial. A polynomial is an algebraic expression whose coefficients are real number and exponent are non-negative. Real number means, to student, we discuss in set chapter what is a rational number and what is a real number. Real number 1, 2, 3 and so on, or 3 upon 2, 4 upon 5, and negative and positive and both. So a polynomial is an algebraic expression whose coefficients are real number and exponent are non-negative. Exponent means degree or power. For example, x square minus 3x plus 2 is a polynomial. In this expression, student, here x square is exponent or degree or power. In x square, the coefficient of x square is 1. Second is minus 3x. 3 is coefficient. This is a real number. And then plus 2. Plus 2 is a constant. And we discuss in lecture number 3. So 1, minus 3 and 2 are real numbers. And exponent is 2. Exponent means, student, degree or power. So you can write any polynomial expression or simply polynomial. For example, student, 4x cube minus 2xy 5z plus 2c and so on. Now come to this second kind, that is rational expression. An expression that can be written in the form of p upon q. P upon q means p is numerator and q is denominator, where p and q are polynomial and q is not equals to 0. It's mean denominator में 0 नहीं होना चाहिए. P अपॉन Q मीन्स कि कोई भी आप नंबर लिख रहे हैं, कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें Q आपके पास 0 नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. जब हमने पोलिनोमियल की बात कही थी, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन में नहीं था, लेकिन रैशनल की बात करें तो एक टर्म फ्रैक्शनल में है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपके पास फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन में मौजूद है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा रैशनल एक्सप्रेशन. तो यू कैन राइट मैनी रैशनल एक्सप्रेशन लाइक 5 upon 3 x cube. For example, z square minus 7x 3 plus 2x upon 3. This is also called an rational expression. So student, you can write any rational expression, and for rational expression it necessary that rational expression can be written in the form of p upon q. अब उस एक्सप्रेशन में कितने ही टर्म्स क्यों ना हो, कोई एक टर्म आपने किस में लिखना है, फ्रैक्शन में ज़रूर लिखना है, तो इरेशनल हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट, कम टू द इरेशनल एक्सप्रेशन.
In irrational expression like radical sign, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, और इस रेडिकल साइन के अंदर आपने कोई भी जो है एक्सप्रेशन लिख देनी है एक्स से। फॉर एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स वाई, दीज आर दी कॉल्ड इरेशनल एक्सप्रेशन। यानी हमने क्या देखा डिफरेंस, इरेशनल एक्सप्रेशन में रेडिकल साइन है। कौन सा साइन है स्टूडेंट, रेडिकल साइन। अब वो चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, और जो भी एक्सप्रेशन है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये परफेक्ट स्क्वायर या नहीं है, क्योंकि रेडिकल साइन जो ये स्क्वायर रूट है आपके पास। अगर यहाँ पे इंडेक्स शो नहीं हो रहा तो ये स्क्वायर रूट है, और अगर इंडेक्स शो कर दें जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ स्टूडेंट 2x माइनस वन, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन अगर इसको मैं कर दूं अपॉन 3 तो ये रैशनल हो जाएगा। इसमें अगर मैं लगा दूं रेडिकल साइन तो ये हो जाएगा इरेशनल। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। होप स्टूडेंट you understand the difference between polynomial, rational and irrational expression. Now come to the classification of polynomials student. According to number of terms, हम डिस्कस कर चुके हैं कि टर्म्स कैसे बनते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, द फर्स्ट टाइप इज मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मीन्स अ पोलिनोमियल कंसिस्ट अ सिंगल टर्म। अब सिंगल टर्म के देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है, 5x स्क्वायर माइनस 3xy, ये क्या है आपके पास, मोनोनोमियल, यानी एक टर्म होना चाहिए उसमें। मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 3x अपॉन 2, ये भी मोनोनोमियल है। मैं यूँ भी लिख सकती हूँ 5z, ये मोनोनोमियल है। मैं यूँ लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, ये मोनोनोमियल है। मैं लिख सकती हूँ आपके पास माइनस 2xy स्क्वायर, ये मोनोनोमियल है। अगर सिंगल टर्म लिखनी हो तो वो मोनोनोमियल हो गया आपके पास। नाउ बायनोमियल, बाय मीन्स टू, बायनोमियल मीन्स कि अ पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। अब टू टर्म्स की कोई भी एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5y, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 7, फॉर एग्जाम्पल 2xy माइनस 3yz। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, टू टर्म्स, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। लेकिन अगर मैं ये लिखती स्टूडेंट सपोज 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो ये बाइनोमियल नहीं है, दो टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म्स है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर देगा 6xy, ये सिंगल टर्म बनाएगा। तो टर्म्स के लिए मैंने स्टूडेंट आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। यानी अगर 2x और 3y के बिटवीन प्लस का साइन होता तो ये टू टर्म्स हो जाते, तो ये बाइनोमियल हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी एक आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक टर्म है। नाउ स्टूडेंट ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन थ्री, ट्राइनोमियल एनी पोलिनोमियल दैट कंसिस्ट थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिख देनी है जिसमें तीन टर्म्स होने चाहिए, वो क्या होगी, ट्राइनोमियल होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 5, ये क्या है आपके पास, ट्राइनोमियल है। राइट स्टूडेंट। अब क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली है, तो आपको अगर कहा जाए कि राइट एनी इरेशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल, write any rational expression having two terms, or write any binomial expression, you can easily write student। कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी आपके पास वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल मीन्स क्या है, ए टू जी आपने कोई सा भी अल्फ़ाबेट का लेटर लेना है, कोई भी पावर आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट कम टू दिस एग्जाम्पल, इसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, इसमें आपको मैं याद दिला दूं कि कोफिशिएंट, ये जो 5, 2 और 9 है, ये कोफिशिएंट है, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड मौजूद नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन हम ज़रा उसकी तरफ आते हैं, क्लासिफिकेशन। देखिए सिंगल टर्म को मोनोनोमियल बताया यहाँ पे, जब दो टर्म्स हो गए तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हो गए तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, सिंगल टर्म ओनली वन टर्म called mononomial, two terms called binomial, and three terms called
trinomial, and this is a algebraic expression. This is also called polynomial. इसको आप polynomial भी कह सकते हैं. अगर इसमें आप क्या कर देंगे, 2 के नीचे सपोज 2 के नीचे मैं लगा दूँ 3, ये हो जाएगा रैशनल. और किसी भी एक टर्म में अगर मैं रेडिकल साइन लगा दूँ, ये हो जाएगा इरेशनल. स्टूडेंट, hope you understand this lecture. Now student, come to the exercise. Exercise number 5.1. Question number 3. Fill in the blanks. Selecting correct answer from the brackets. Number 1. 6 multiplied by 7 is equals to 7 multiplied by 6. This property use is called dash property of multiplication. क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और दो टर्म्स हैं. आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 है और राइट हैंड साइड पे भी 7 मल्टीप्लाई बाय 6 है. दोनों टर्म्स एक जैसे हैं. अगर दोनों टर्म्स एक जैसे हों लेफ्ट और राइट में, यानी 6 6 7 7, इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी है. यहाँ पहले 6 लिख दिया है, यहाँ पहले 7 लिख दिया है, लेकिन इनका आंसर सेम आएगा. तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है स्टूडेंट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम टर्म्स मौजूद हैं तो वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर प्लस का साइन होता तो एडिशन कहलाता. ठीक है स्टूडेंट. सेकंड में क्या है देख रहे हैं आप, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5. द प्रॉपर्टी यूज इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी. जब 3 टर्म्स आ जाएं स्टूडेंट जैसे यहाँ पे देखें 3 टर्म्स हैं 2 3 और 5, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास राइट साइड पे 2 3 और 5. लेफ्ट साइड पे 2 और 3 को ब्रैकेट में कर रखा है, यानी आप पहले 2 और 3 को प्लस करें 5 आएगा, फिर उसमें 5 को प्लस करें 10 आ जाएगा. यहाँ कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 5 + 3 को प्लस करना है, पहले 8 आएगा, 8 में 2 को प्लस करना है 10 हो जाएगा. तो क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे एक जैसे टर्म है और 3 टर्म्स हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर स्टूडेंट? 3 टर्म्स. 1 2 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 इन राइट हैंड साइड. तो जब ऐसी आपके पास जब सिचुएशन आ जाए तो प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि प्लस हो रहा है तो एडिशन. क्या कहलाएगा? एडिशन. और अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लिकेशन. So it means student, what is the difference between commutative and associative? In commutative we have only 2 terms, in associative we have only 3 terms. This is the difference between commutative and associative. Now student, come to the blank number 3. x square minus 2x plus y square is the expression. क्या है, कौन सी एक्सप्रेशन है स्टूडेंट? ये अभी हमने काइंड्स पढ़ा था. डेफिनेटली ये पोलिनोमियल है. क्या है ये? क्योंकि रैशनल नहीं है. रैशनल होता तो कोई ना कोई फ्रैक्शन में होता है इसमें, और इरेशनल भी नहीं है. रैशनल होता तो कोई ना कोई रेडिकल साइन के साथ होता है. किस साइन के साथ? रेडिकल साइन के साथ, जिसे आप स्क्वायर रूट कह रहे हैं. ये कौन सा साइन है? रेडिकल साइन. ठीक है. नो नंबर 4, x + 1/x इज डैश एक्सप्रेशन. अब इसमें एक फ्रैक्शन में आ गया तो ये क्या हो गया? रैशनल एक्सप्रेशन हो गया. Now student, come to the blank number 5. 5x square y square z square is a dash. ये एक ही टर्म है आपके पास. इस इनके बिटवीन ये लिखा हुआ है 5x square y square z square. इनके बिटवीन कोई प्लस माइनस नहीं है. कोई प्लस माइनस नहीं है. जब कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब है ये मोनोनोमियल है, सिंगल टर्म है, सिर्फ एक टर्म है ये. ठीक है स्टूडेंट. तो इसका आंसर क्या हो गया? मोनोनोमियल. नाउ कम टू दी ब्लैंक नंबर 6 स्टूडेंट. x³ - 1 इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री. डिग्री पूछ रहे हैं इसमें, यानी एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं. x की पावर क्या आपके पास? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई आपके पास. ठीक है. इन द एक्सप्रेशन 5a² - a - 4, 5a² - a - 4, द कोफिशिएंट ऑफ a द कोफिशिएंट ऑफ ए इज, किसका कोफिशिएंट पूछा है? ए का. a² का नहीं पूछा, ए का पूछा है. क्या लिखा हुआ एक्सप्रेशन स्टूडेंट? 5a² - a - 4. क्या आपको बताना है? आपको भी यहाँ बताना है कोफिशिएंट ऑफ ए. तो कोफिशिएंट ऑफ ए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? नहीं. तो जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है. क्या होता है वो? 1. तो अब इससे पहले ए से पहले माइनस साइन है तो हो जाएगा -1. क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट? -1. अगर ये कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ a² तो
ए स्क्वायर के साथ स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है 5, तो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 5, और इससे पहले किसका साइन है, कोई साइन है तो प्लस है, तो होता +5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने अपनी ब्लैंक्स के लिहाज से याद रखना है। नाउ स्टूडेंट कम टू द ब्लैंक नंबर 8। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 + 5 इज अ पोलिनोमियल ऑन रैशनल इररेशनल इंटीजर्स। अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, रैशनल इररेशनल में डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है ना। कौन सा है ये, डेफिनेटली ये कौन सा है, रैशनल एक्सप्रेशन। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट ब्लैंक, दैट इज the additive inverse of 3x minus 5. What is the mean of additive inverse? additive inverse का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर हम 3x minus 5y को एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइन वाली एक्सप्रेशन ले लेंगे। 3x यहाँ पे हमारे पास प्लस में है और 5y माइनस में, तो अब हमें वो एक्सप्रेशन लेनी है, हमें वो एक्सप्रेशन लेनी है जो 3x माइनस 5y के अपोजिट साइन के साथ हो, यानी 3 प्लस में है और 5 माइनस में है। तो अब हमें वो एक्सप्रेशन लेनी है जिसमें 3 माइनस में हो और 5 किस में हो, प्लस में हो। तो आप पिक करें, आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली एक्सप्रेशन है, 5 प्लस में आ गया यहाँ पे और 3 माइनस में आ गया। तो ये जो आपके पास है यहाँ पे सेकंड वाला जो आप चूज़ करेंगे वो हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स के मीनिंग क्या होते हैं स्टूडेंट? एडिटिव इन्वर्स के मीनिंग ये है कि जब हमने 3x माइनस 5y लिया और उसके अपोजिट हमने लिया 5y माइनस 3x, तो इनका जो आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ज़ीरो, जब हम उनको ऐड करें। एडिटिव का मतलब ऐड करना, ठीक है। एडिटिव जब ऐड करेंगे यानी इन के बिटवीन प्लस का साइन लगा देंगे हम, तो आपके पास रिजल्ट क्या हो, ज़ीरो हो। कैसे ज़ीरो देखें, -3x कैंसिल विद +3x, -5y कैंसिल विद +5y, तो सब कुछ कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। यानी जो साइन है उसका अपोजिट साइन लें और उसको ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। इनमें बाकी जो ऑप्शंस हैं उससे आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी उससे अपोजिट ऐसी एक्सप्रेशन लेनी है जिससे आंसर 1 आए। यहाँ a माइनस बी है, अगर मैं b माइनस ए लूँ तो नहीं, 1 आंसर नहीं आएगा। देखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी को अगर मैं b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 नहीं आएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं a माइनस बी को स्टूडेंट a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दूं 1/a माइनस बी से, तो देखें ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए और आंसर क्या रह गया, 1। इट्स मीन स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको जो भी एक्सप्रेशन दी जाए उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। a माइनस बी है तो 1/a माइनस बी लिख देना है, b है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/b, ठीक है। अगर लिखा हुआ होता आपके पास 9x/5 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल कर दें 5/9x, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x कैंसिल, 5 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। सो स्टूडेंट एडिटिव इन्वर्स के लिए आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 0 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए रिजल्ट आना चाहिए 1। तो बहुत आसान है, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज कर दें और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसका रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें। स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आपका होमवर्क क्या है, आपने जो क्लासिफिकेशन और जो काइंड्स मैंने आपको समझाई उसे कॉपी में आपने नोट डाउन करना है और ये ब्लैंक्स नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।